नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल अदालत के अधिवक्ता पिछले लंबे समय से फैमिली कोर्ट के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। आज आसनसोल अदालत के वकीलों ने अदालत परिसर के निकट धरना प्रदर्शन किया। यहां आसनसोल अदालत के तमाम वकील उपस्थित थे, जिन्होंने फैमिली कोर्ट के मुद्दे पर किए जा रहे इस धरना प्रदर्शन में शिरकत की। इस बारे में आसनसोल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि फैमिली कोर्ट के मुद्दे पर आसनसोल अदालत के वकील पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक ही अदालत में अगर 30,000 मामले सुनवाई के लिए दे दिए जाएं तो इससे लोगों को भारी परेशानी होगी। एक एक तारीख आने में कई महीने लग जाएंगे। ऐसे में आसनसोल अदालत के वकीलों की मांग है कि जो मामले जिस कोर्ट में थे उन मामलों को उन कोर्ट में वापस भेजा जाए। उन्होंने बताया कि आसनसोल अदालत के वकील इस संबंध में ज़िला जज, जोनल जज और हाई कोर्ट के जजों के संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है, जिस वजह से आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। যতদূর যেতে হয় তো আমি খুব আশাবাদী হয়তো কিছু হবে। হ্যাঁ, যদি আমাদের ছেলেরা এত এমন জায়গায় চলে এসছে যে মিশ্রদা, যার বয়স হচ্ছে 84 বছর, সেও আজ ধর্নায় বসেছে। সেও আজকে দেখুন ওই ভদ্রলোক আজকে চূড়ায়, মহিলারা সব চলে এসছে। তারা প্রত্যেকেই আজকে লড়াই করছে। তারা এই কথাই বলছে, তারা যেটা বলছে সেটা মানুষের স্বার্থে বলছে, আর কিছু নয়। আমরা আমাদের স্বার্থে বলছি না, যাতে কেউ বিচার থেকে এবং আমাদের ছেলেদের যা, আমাদের লয়ারদের যা অবস্থা, তারা বলছে আমরা আমরণ ধর্ম করবো, আমরা স্টারভেশনে থাকবো, তাও আচ্ছা, কিন্তু আমরা এই লড়াইটা লড়বো, জনগণের সাথে লড়বো, মানুষের সাথে লড়বো। এই লড়াই বাঁচার লড়াই, এই লড়াই শুধু আসানসোলের লড়াই নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে লড়াই। আজকে আমাদের ফ্যামিলি কোর্ট নিয়ে আমরা এখানে বসেছি। দীর্ঘদিন আমরা এই কোর্ট চত্বরে আমাদের সিনিয়র জুনিয়র লয়ার সবাই মানে কোর্টে কাজ করতে পারছে না, কোর্টে এসেও মানে কাজে মন দিতে পারছে না। আমরা এটা অনেক দিন দিয়ে কর্মবিরতি রেখেছি। আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে, যেহেতু আমরা কাজ করতে পারছি না। আমাদেরকে কোনো এখন পর্যন্ত অ্যাসুরেন্স দেওয়া যাচ্ছে না যে আমরা এরপরে আমরা কি কোথায় যাব। আজকে আসানসোল কোর্টে 30,000 মামলা একটা কোর্টের যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা কিভাবে একটা কোর্ট চালাবে? কোর্টে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখন পর্যন্ত তৈরি নেই। আর আমাদের শুধু একটাই দাবি, যেই মামলাটা যেই কোর্টে ছিল সেই মামলাটা ওই কোর্টে চলে গেলে আমরা সুস্থভাবে কাজ করতে পারবো, এই আমাদের কথা। হ্যাঁ, এদের কথা আমরা ডিস্ট্রিক্ট জাজ কাছে রাখছি, আমরা জোনাল জাজ কাছে রাখছি, হাইকোর্টের কাছে রাখছি। হচ্ছে, ডিস্ট্রিক্ট জাজ সঙ্গে হচ্ছে, কথাবার্তা চলছে। আর একটু আমরা মানে যেটা আমরা পুরো ক্লিয়ারভাবে কোনো কিছু পাচ্ছি না, একটু ক্লিয়ার আমরা পেয়ে গেলে আমরা আমরা তো এখানে বসে আছি, বসেই থাকবো। আমাদেরও কষ্ট। সব থেকে বড় জিনিস আপনারা ভাববেন কি, আমাদের 3,000 লয়ার ইফেক্টেড, তার সাথে সাথে 30,000 যে পেন্ডিং মামলা, মহিলারা যারা টাকা পাচ্ছেন না, 125, 127, 128 যে মামলাগুলো পড়ে আছে, তারাও তো ওই কাজগুলো সুস্থভাবে হচ্ছে না। এবার ধরে নিন একটা মহিলা একটা মেনটেন্যান্স জন্য কেস করলো, তার ডেটটা পড়লো 10 মাস পর, তো কীভাবে কাজটা করতে পারে? আমাদের তো লিটিগেন্টদেরকে উদ্ধার করতে হবে। রাজেশ তিওয়ারি।
भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी आज सुबह कुल्टी पहुंचे। उन्होंने आज कुल्टी में सुबह की सैर की और सुबह की सैर करने आए अन्य लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता तथा आम जनता उपस्थित थे। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पूरा दिन तो राजनीति करने में बीत जाता है, लेकिन सुबह जब मन पवित्र रहता है तो उस समय सुबह की सैर करना मन और सेहत के लिए अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि आसनसोल लोकसभा का हर निवासी उनके लिए परिवार के सदस्य के रूप में है, इसलिए सुबह की सैर पर लोगों से मिलने को वो जनसंपर्क नहीं कहना चाहते, वो अपने परिजनों के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत करने के लिए आए हैं। কি কর্মসূচি সকালে? কর্মসূচি কিছু না, আমরা খবর পেয়েছি যে এখানে আমাদের কুলটি অনেকে আছেন যারা স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত, যারা স্বাস্থ্য সচেতন, তারা মর্নিং ওয়াকে আসেন। তাদের সঙ্গে জাস্ট দেখা করার জন্য এসেছি। আমাদের দলের আরও অনেক কার্যকর্তা আছে, তারাও সবসময় এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এসেছি, সারাদিন তো পলিটিক্স হয়, কিন্তু অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ডে যখন দূষিত পলিটিক্স থেকে আমরা দূরে থাকি, যখন খুব মন পরিষ্কার থাকে, তখন তাদের সঙ্গে একটা ইন্টারেক্ট করা, তাদের সঙ্গে কথা বলা। আজকে কি এটা জনসংযোগ তো না, না জনসংযোগ বলা, জনসংযোগ তো এভরিডে হয়, সবসময় জনসংযোগ না, না ঠিক পলিটিক্যাল লোকেরা জনগণের মাঝে যখনই যাবে সেটাকে জনসংযোগই বলা চলে। কিন্তু দেখুন, আসানসোলের তো মানুষ আমাদের জন্য শুধু জনগণ না, আসানসোলের মানুষ, আসানসোল লোকসভার মানুষ, কুলটির মানুষ আমার পরিবারের সদস্য। তো পরিবারের লোকেদের সঙ্গে যখন আপনি দেখা করছেন সেটাকে আর জনসংযোগ বলা চলে না। এক ফ্যামিলি মেম্বার একে অপরের সঙ্গে দেখা করছে, মিলিত হচ্ছি, 10 রকম কথা হবে, বাস দুঃখে সুখের কথা হবে, এই কারণে আসা যাচ্ছে। একটা জিনিস দেখা গেছে গতকাল শাসক দলের পক্ষ থেকে এটা করেছে সাংবাদিক সম্মেলন, এই বিষয়টা নিয়ে কি বলছেন? না, ওটা নিয়ে আমাদের দল অলরেডি, আমাদের বিরোধী দলের নেতা যা বলার বলে দিয়েছেন, রাজ্য সভাপতি বলে দিয়েছেন, আমাদের চিফ যিনি স্পোক্স পার্সন শ্রমিক পর্যায়ে তিনি যা বলার বলে দিয়েছেন। আমার নতুন করে কিছু বলার নেই, আমার দল যা বলার বলে দিয়েছে। कानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुद्दा एक बार फिर आज सुर्खियों में आ गया। वर्तमान कमेटी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि अदालत की तरफ से सुरेंद्र सिंह अत्तू सहित जिन लोगों को गुरुद्वारा परिसर में घुसने की मनाही है, वो लोग आज 12:30 बजे के आसपास गुरुद्वारे के ऊपर जो स्कूल चलता है उस स्कूल के गेट के पास चेयर डालकर बैठ गए और आने जाने वाले विद्यार्थियों और कुछ अभिभावकों से बातचीत की और कुछ अभिभावकों से और बच्चों से दस्तखत भी करवाए। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और उनको इस गुरुद्वारे परिसर के आसपास भी आने की अनुमति नहीं है, जबकि वो गेट के सामने चेयर डालकर बैठ गए हैं और गुरुद्वारा परिसर और स्कूल का माहौल ख़राब करने पर तुले हुए हैं। उनका साफ कहना है कि अदालत के आदेश की अवहेलना है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि वो इस पर संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। हालांकि इस बारे में जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो पहले ख़ुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। 12:30 बजे के करीब पता चला कि कुछ लोग गुरुद्वारे के बैक साइड स्कूल का गेट है जहाँ से बच्चियाँ आती जाती, वहाँ पे खड़े होकर के कुछ लोगों से सिग्नेचर करवा रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि ये वो ग्रुप है जिसमें कि सुरेंद्र सिंह अत्तू था, जसविंदर सिंह था और कश्मीरा सिंह था उनके, और अत्तू सिंह के जो भाई हैं सुरजीत सिंह, और एक उनका भाई है डट्टी। ये सब मिल करके स्कूल से आने जाने वाले बच्चों के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें कि असल में कोर्ट की तरफ से स्ट्रिक्ट आदेश है कि ये कोर्ट गुरुद्वारे की जो प्रेमिसेस है उसके अंदर भी नहीं आ सकते, उसके आसपास भी नहीं आ सकते। ऐसे लोग यहाँ पे आकर के बच्चों से और कुछ पेरेंट्स से कुछ तरह के दस्तावेज साइन करवा रहे थे स्कूल के खिलाफ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है हमारा, ये स्कूल हमारे पुरखों का बनाया हुआ स्कूल है जो कि गुरुद्वारा बिल्डिंग के ऊपर स्थित है, और इस स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बच्चियाँ पढ़ती हैं। इसलिए हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के स्कूल को बंद कराने की कोई अगर ऐसी कोशिश करता है तो बहुत ही गलत है, और ये चाहेंगे कि इसको बंद कराना ये ऐसे लोग जो कि खुद कोर्ट कचहरियों के चक्रों में पड़े हुए हैं, जो केस खाए हुए हैं, जिन्होंने मारामारियाँ की, जो गुंडागर्दियाँ कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर स्कूलों के बारे में निश्चय डिसीजंस लेने लगेंगे और संगत को डिस्टर्ब करेंगे, बच्चों को डिस्टर्ब, ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा, आप लोगों ने जो वीडियो फुटेज किया है उसमें देख रहे हैं स्कूल से आने जाने वाले गेट के पास में लोग चेयर डाल के बैठे हुए हैं। आप खुद बताइए, जिस स्कूल से बच्चियाँ आती हों, जिस स्कूल में लेडीज़ टीचर्स हो, वैसे 5-7 लोगों का इस तरीके से बैठ जाना क्या सही है? ये मीडिया वाले तो खुद भी देख सकते हैं।
बस इसी का विरोध करने के लिए हम सर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, पुलिस ने भी उनको बोला है, लेकिन वो ढीठों के जैसे बैठे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना होगा इसमें। क्या नाम है? मेरा नाम है रंजीत सिंह है, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल सेक्रेटरी। कुछ आदमी जिनको कि कोर्ट से टोटल ऑर्डर दिया कि गुरुद्वारा कैंपस में नहीं आना है, और वो गुरुद्वारा कैंपस में इन कर गए हैं और बैठे हुए हैं जैसे गुंडों की तरह। जिस जगह से स्कूल का रास्ता है, बच्चियां जाती है माध्यमिक स्कूल जो फ्री प्राइमरी स्कूल है स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ डिस्टर्ब करने के लिए बैठ गए हैं। और क्या इन लोग बच्चों से लिखवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्या लोभ दे रहे हैं। स्कूल बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है, जिसमें कोई भी असुविधा नहीं है, हर सुविधा बच्चों को मिलती है। लेकिन ये कुछ भी यहाँ पर एलिगेशन लगा के स्कूल बंद करने के लिए अपना कुछ अवसर कर रहे हैं। तो यही सरकार प्रशासन से बेनती है, जो भी गुरुद्वारा शांतिपूर्वक चल रहा है, इसको कोई भी जिसको कोर्ट से ऑर्डर है उसको इस कैंपस में आने के लिए एक्शन लिया, जो भी नियम है वो डिसीजन लिया जाए, यही हमारी विनती है। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। क्या नाम है आपका? नाम सुखबीर सिंह। अच्छा, यहाँ तो पुलिस प्रशासन है, जब कोर्ट से ऑर्डर है तो उन लोग को क्यों नहीं हटा रहे? ये कह रहे हैं कि ये इसको प्रॉपर्टी, लेकिन ये इसको प्रॉपर्टी नहीं है, गुरुद्वारा के कैंपस नहीं, में मेरा जिसका कि प्रश्न- आप देखिए गेट हमारे मेरा अंदर में। प्रश्न है कि यहाँ जब पुलिस मौजूद है, जब कोर्ट से ऑर्डर है कि हटने का, तो उन लोगों को क्यों नहीं हटा रही पुलिस? इन लोगों ने क्या है कि इसको की ज़मीन है, ये गुरुद्वारा के बाहर है। लेकिन हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, आप देखिए सामने ये गुरुद्वारा के बिल्डिंग के अंदर ही है ग्राउंड, और जो ग्राउंड है एक बाहर है, वो इसको आता है। लेकिन आप सामने देखिए जिसका कि चाबी गेट लगे है, हम लोग खुद इसका चार्जेबल है। अभी हम प्रेजेंट कमेटी के मेंबर जितने, गेट हमारे अधीन है और हमारे अधीन में ये एरिया पड़ता है। और इस एरिया में उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक गुरुद्वारा चल रहा है, इसमें किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और ये शांति बनी रहे, यही हम प्रशासन से अभी तो वो लोग हैं, अब क्या करेंगे आप? इसमें प्रशासन को कोशिश करना चाहिए कि प्रशासन चाहे जैसे भी हम लोग एक साथ, हमारे साथ आप देख रहे हैं कितने जन बैठे हैं, आप क्या वीडियो में दिखाइए, वीडियो में आपको पता चलेगा इतने आदमी है। हर आदमी का विचार होता है, जब संगत हम लोग विचार करें वही हम लोग डिसीजन लें। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वह सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी।
वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक नाउ गेट आइकॉनिक ब्रांड विद मॉडर्न पावर फॉर ग्रीनर टुमारो। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। बर्नपुर डेली मार्केट के व्यापारियों ने आज अपनी कई मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बर्नपुर ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष काजल पाल ने बताया कि यहां पर 3 पार्किंग जोन हुआ करता था, जिसमें से थाने के सामने जो पार्किंग जोन था वो निःशुल्क था, बाकी बस स्टैंड के सामने और मिनी मार्केट 1 में पेड पार्किंग जोन था। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि सभी पार्किंग जोन में पैसे लिए जा रहे हैं। जब यहाँ के दुकानदारों ने इसका विरोध किया तब इसको के चीफ जनरल मैनेजर ने दुकानदारों की बात मानते हुए फ्री पार्किंग जोन के लिए जगह तय कर दिया और बगल में ATM लगाने के लिए एक जगह भी उपलब्ध करा दिया। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को पार्किंग जोन चलाने का टेंडर मिला है वो अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं और पूरी जगह पर पेड पार्किंग जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ATM के लिए जो जगह तय की गई थी वहाँ पर भी पैसे लेकर वाहन रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसको प्रशासन से ISP का जो टाउन विभाग है वो हमेशा कोई न कोई नई समस्या से हम लोगों को उलझाता है उसमें। देखिए, आज जो समस्या है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 40 साल पहले, 40 साल से बाजार में जो भी व्यापारी, जो भी कस्टमर, जो भी ग्राहक और शिल्पांचल के जो भी मजदूर यहाँ बाजार करने आते हैं, उनको साइकिल की सुविधा के लिए, 2 व्हीलर रखने की सुविधा के लिए थाना के बगल में एक मैदान दिया गया था जो कि फ्री पार्किंग था, जहाँ की बाजार के दुकानदार, शिल्पांचल में काम करने वाले लोग, माताएं बहनें जो भी साइकिल लेके आते हैं, 2 व्हीलर लेके आते हैं, वो वहाँ पे फ्री में पार्किंग करते थे। ये सुविधा हमको 30-40 साल पहले से इसको के पदाधिकारियों ने ही दी थी। अचानक ये पिछले 1-1.5 महीने से हम लोगों को ये सूचना मिली कि उस फ्री पार्किंग के जगह को इसको कर्मचारियों ने, इसको के पदाधिकारियों ने, टाउन सर्विसेज के ऊंचे अधिकारियों ने उसको एक राशि लेकर किसी को वहाँ पे वो दे दिया है कि आप यहाँ पे पेड पार्किंग शुरू कीजिए। लेकिन ये पेड पार्किंग जो है वो बहुत ही अन्याययुक्त है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। पेड पार्किंग अचानक बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी दुकानदार साथियों के परामर्श के, ये मार्केट कमेटी के बिना परमिशन के या उनसे बिना कंसल्टेशन के ये किया गया, उसको पेड पार्किंग कर दिया गया। 40 साल पुरानी चीज जो कि फ्री पार्किंग थी उसको अचानक पेड पार्किंग में बदल दिया गया। अभी हम लोग चाहते हैं कि पेड पार्किंग में जो पैसा निर्धारित किया गया है वो हमारे कंसल्टेशन से नहीं है। इसको लेकर जब समस्या और गंभीर हुई तो यहाँ के हमारे जो लोकल माननीय काउंसिलर हैं, हाँ, श्री अशोक रुद्रो महाशय, उनके ऑफिस में हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग दोनों पक्ष गए, जिनको ये साइकिल स्टैंड की पार्किंग मिली है और हम बाजार दुकानदार, जो भी हमारे दुकानदार हैं, सभी हम लोग वहाँ गए। पिछले 13 मार्च को वहाँ पे एक सभा हुई, एक मीटिंग हुई, बैठकर समस्याओं का समाधान किया गया। ये समाधान निकाला गया कि चूंकि उसने एक राशि देकर इस पार्किंग को लिया है, इसलिए फ्री नहीं होकर कुछ पैसे जो है जो भी हो मासिक रूप से दिया जाए। लेकिन बाजार का उस पार्किंग का एक हिस्सा
वो फ्री रहेगा दुकानदारों के लिए। जो लोग पेड पार्किंग में जाना चाहेंगे वो पेड पार्किंग में जाएंगे। बाजार के दुकानदार साथी जो है हमारे, जो भी दुकानदार हैं वो वहाँ पे फ्री पार्किंग में रखेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट होने के बाद देखिए ये वो एग्रीमेंट है जिस पर कि दोनों पक्ष का हस्ताक्षर है। हमारे मार्केट कमेटी के सदस्य भी बैठे हैं, काउंसलर महाशय भी बैठे थे, और जिनको साइकिल स्टैंड मिला है उन्होंने भी साइन किया है। साइन करने के बाद इन शर्तों को माना गया, लेकिन इन शर्तों को मानने के जगह इसका पूरा उल्लंघन किया गया है। वहाँ पे फ्री पार्किंग की जगह पे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि फ्री पार्किंग के लिए लोग वहाँ रुक नहीं सके। फ्री पार्किंग के लिए जो जगह मिली, अलॉट किया गया है, उससे बढ़कर वहाँ पे एक SBI के ATM है, सिंगल ATM है, उसके बगल में जो खाली जगह है उसको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल इलीगल है। हम लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि एक ATM इतने बड़े बाजार में आने वाले शिल्पांचल के लोगों के लिए काफी नहीं है। वहाँ हमेशा भीड़ रहती है, लोग वहाँ ATM से पैसा निकालने जाते हैं, बाहर रोड तक लाइन लग जाती है। वो जगह वहाँ पे हमारा ये प्रयास चल रहा है कि वहाँ और भी बैंकों के ATM को लगाया जाए, लेकिन वहाँ पे उसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं और बहुत ही दुख के साथ ये सूचित करना पड़ता है कि इस काम में किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने के लिए आर्थिक राशि का लेन देन करके हमारे सेल ISP के कुछ पदाधिकारी भी इसमें शामिल है। अन्यथा ये काम नहीं हो सकता है। खाली जमीन को इस तरीके से घेर कर और वहां से रोजगार करने का उपाय लगाना, उसके स्वरूप को बदल देना, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग फ्री पार्किंग चाहिए। सेल के आधा जगह से मौखिक बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एक हिस्सा जो है इसका ये फ्री पार्किंग है, वो बाजार के दुकानदारों के लिए फ्री रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसका उल्लंघन करते हुए वहाँ पे गेट लगा दिया गया है ताकि वहाँ लोग ढुक नहीं सके। मेरा नाम प्यारे मोहन वर्मा है। मैं इसी बाजार का एक दुकानदार हूँ, मार्केट कमेटी से संबंधित हूँ। मैंने बाजार को 30 साल से इस बाजार के उत्थान को, उन्नति को, नीचे गिरने को, सबको देखा है। आज मेरी उम्र 72 साल है। आज हम 30 साल की उम्र से इसी टीन के शेड में जो है हम अपना कारोबार कर रहे हैं। पूरे मार्केट को आप घूम कर देख लीजिए, मार्केट में उन्नति का, उन्नयन का, डेवलपमेंट का एक काम नहीं हुआ है। हमारे बाजार की सड़कें बिल्कुल भीतर के रास्तों में आप देखिए गड्ढे हैं जहाँ पानी जम जाता है। हमारी माताएं बहनें जो बाजार करने आती हैं, शिल्पांचल के लोग जो यहाँ आते हैं, वो अच्छे तरीके से चल भी नहीं सकते। चारों तरफ आपका स्वागत करने के लिए कचरे का ढेर लगा हुआ है। आप बाजार में ढुकेंगे, आपका स्वागत कचरे के ढेर से होगा। इस पे हमारा यही कहना है कि इसको के जो भी पदाधिकारी हैं, सेल ISP के, टाउन सर्विसेज के जो भी पदाधिकारी हैं, वो उस पर गंभीरता से जरा सोचें। আমাদের বানপুর ডেলি মার্কেটে মিনি মার্কেট 1 আর বানপুর ডেলি মার্কেট মিলে 3টে পার্কিং জোন ছিল মার্কেট শুরু থেকে। এর মধ্যে থানার পাশে ছিল ফ্রি পার্কিং জোন, আর বাকি দুখানা আছে মিনি মার্কেট 1 আর বানপুর ডেলি মার্কেটের মধ্যে আছে পেড পার্কিং জোন, বাস স্ট্যান্ডের সামনে আছে পেড পার্কিং জোন। হঠাৎ আমরা দেখলাম যে 3টেই পেড পার্কিং জোন করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত দোকানদার পেড পার্কিং জোনের এগেনস্টে বিরোধ করে। তখন ওখানে CGM উপস্থিত ছিলেন, উনি নির্দিষ্ট অঞ্চল করে দেন, দোকানদারদের ডিমান্ড অনুযায়ী নির্দিষ্ট অঞ্চল ফ্রি পার্কিং জোন করে দেন। তার পাশে একটি ATM আছে। আমাদের সমস্ত দোকানদার এবং মার্কেট কমিটির সহযোগিতায় বহু ব্যাংকের সাথে আমাদের কথা হয়েছে, তারা ওখানে ATM বসিয়ে দিতে রাজি আছে। এবং সেই জন্য আমরা বলেছিলাম যে ওই জায়গাটা ATM জোন হিসাবে ব্যবহার করা। এটা এর আগে যে ইসকো কর্তৃপক্ষ ছিল উনি আমাদের আশ্বাসন দিয়েছেন যে হ্যাঁ এইরকম ভাবেই থাকবে। কিন্তু নতুন যে পার্কিং জোন হয়েছে, সেই পার্কিং জোনে যারা এসছে তারা সমস্ত যে জায়গা আছে, থানার মাঠ, পেড পার্কিং জোন, যে অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, সেই ছাড়াও যে ফ্রি পার্কিং জোন, সেই ফ্রি পার্কিং জোন আর ATM এর পাশে যে ফ্রি এলাকা রয়েছে সেখানে তারা ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন করে তারা পুরোটাই পেড পার্কিং জোনের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। বিগত 10 বছর ধরে আমাদের দুবার এগ্রিমেন্ট হয়েছে, আমাদের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে,
আজ পর্যন্ত মার্কেটের কোনো উন্নয়ন হয়নি, বিজনেস এনভায়রনমেন্টের কোনো উন্নয়ন হয়নি, সামান্য রাস্তা প্যাচওয়ার্ক করে দেওয়া হয়নি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, পার্কিং জোনের যে গেট, যে ঘেরার জন্য পাঁচিল, ইট, কনস্ট্রাকশন, এর পয়সা কোথা থেকে আসছে? আমরা সমস্ত দোকানদারের থেকে হয়ে আবেদন জানাচ্ছি, আমাদের মার্কেটের যে রাস্তাঘাট আজ পর্যন্ত উন্নয়ন করা হয়নি এবং 50-60 বছরের যে পুরনো মার্কেট, সেই মার্কেটের যে কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি, তার ডেভেলপমেন্ট করা হোক এবং আমাদের ফ্রি পার্কিং জোন যেটা ছিল, আমাদের ফ্রি পার্কিং জোন ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এমতো অবস্থায় আমাদের সমস্ত পক্ষের সাথে যে বচসা শুরু হয়, আমাদের বর্তমান কাউন্সিলর শ্রী অশোক রুদ্র মহাশয়ের সাথে বসে 13 তারিখে আমাদের সবার সাথে বসে একটি এগ্রিমেন্ট হয় যে নির্দিষ্ট অঞ্চল ফ্রি পার্কিং জোন থাকবে, নির্দিষ্ট অঞ্চল এটিএম জোন থাকবে এবং যে অঞ্চলে পেড পার্কিং জোন থাকবে সেই অঞ্চলে নির্দিষ্ট ভাড়া নেবে। মোটর সাইকেল 5 টাকা 6 ঘন্টার জন্য, সাইকেল 3 টাকা 6 ঘন্টার জন্য, গাড়ি 10 টাকা। কিন্তু ওখানে ওরা এখনো পর্যন্ত নিজের মনমানি অনুযায়ী 5 টাকা মোটর সাইকেল 2 ঘন্টার জন্য, সাইকেল 3 টাকা 2 ঘন্টার জন্য ওরা করে রেখেছে। আমরা সমস্ত দোকানদারের বিরোধিতা করছি এবং আমরা এটা মানব না। আমরা বলবো রাস্তা কি এখানে ইসকো কোম্পানির কাছে যতবার দুবার এগ্রিমেন্ট হয়েছে ততবার আমরা তাদেরকে বলেছি আপনারা স্যার মিনিমাম আমাদের প্যাচওয়ার্ক করে দিন, যাতে আমাদের মার্কেটে কাস্টমার হোক দোকানদার হোক চলাচল করতে পারে। কিন্তু সেটা এমপি ফান্ড থেকে করে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু অংশ, বাকি চিরকালই আশ্বাসন দেওয়া এই রাস্তা হচ্ছে, এই টেন্ডার পাস হয়ে গেছে, এই কালকে হয়ে যাবে, এই পরশু সকালে হয়ে যাবে, এই বলে বলে আজকে 10 বছর ধরে এই কথাই বলা হচ্ছে। আমাদের এখানে সুলভ শৌচালয়ের যে ব্যবস্থা ছিল না, ওনারা একটি সিআরএস এর থেকে সুলভ শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষে স্বচ্ছ ভারত অভিযান আছে, অথচ বিনামূল্যে যারা একদম গরিব লোক বা যাদের খুব প্রয়োজন কিন্তু বারবার 2 টাকা করে দিয়ে ইউরিনালে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের জন্য কোনো ফ্রি ইউরিনালের ব্যবস্থা নেই। তা আমার মনে হয় কিছু ইসকো কর্তৃপক্ষ এর সাথে মিলিত আছে এবং আমাদের ধারণা উচ্চ কর্তৃপক্ষ এগুলো জানে না। আমরা আমাদের আওয়াজ আমাদের উচ্চ ইসকো কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছি আপনাদের মাধ্যমে এবং চাই এর সুষ্ঠু সমাধান। কাজল পাল, প্রেসিডেন্ট বানपुर ज्वेलरी एसोसिएशन, मार्केट कमेटी सदस्य। आसनसोल नगर निगम के 57 नंबर वार्ड के वैशाली पार्क के लोगों ने आज आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर राजू मिश्रा से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को उनके सामने बयां किया। इनका कहना है कि उनके वार्ड में साफ़ सफाई नहीं होती, जिस वजह से वहां पर डेंगू का ख़तरा मंडरा रहा है। निकासी व्यवस्था भी बेहद ख़राब है, पानी निकलता नहीं है, जिस वजह से पानी जम जा रहा है। पीने के पानी की भी किल्लत है। ये परेशानियां काफ़ी समय से हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का हल नहीं निकला है। राजू मिश्रा ने उनकी बातों को सुना। उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव बीत जाने के तुरंत बाद सबसे पहला काम उनके वार्ड में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी उनके वार्ड में जाएंगे और उनकी समस्याओं का जायज़ा लेंगे। আমরা স্যারের কাছে দেখা করতে এসেছিলাম আমাদের মেন ড্রেনের সমস্যার জন্য। আমাদের ওখানে যে হারে জলটা জমছে, খুব বাজে পরিস্থিতি, পুরো ময়লা পোকামাকড় হয়ে গেছে, বন্ধতে থাকা যাচ্ছে না, যে কোনো সময় ডেঙ্গু ছড়াতে পারে। স্যারকে এসে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, স্যার বললেন যে আরও কয়েকদিন আগে এলে একটা উপায় হতো, যেহেতু ভোট একদম ক্লোজ চলে এসছে। উনার বলার বক্তব্য যে ভোটটা পেরিয়ে গেলে সবার প্রথমে উনি আমাদের কাজ করবেন। তো উনি একটা রিসিভিং আমাদের এখন করিয়ে দিয়েছেন, এই যে রিসিভিংটা এটা হলো। আর 7 দিনের মধ্যে উনি লোক পাঠাবেন, যেটা বললেন যে একটা বিশ্বাসের জন্য আপনারা দেখে নিন, আমি 7 দিনের মধ্যে লোক পাঠাবো, মাপঝুপ করবে, ঠিক আছে। তারপর যদি না হয় আপনারা আসবেন, আপনাদের ভোটের পর সবার আগে কাজটা আমি করবো। আপনাদের কি সমস্যা বললেন? সমস্যা বললাম মেন ড্রেনের সমস্যা, তারপর ময়লা পরিষ্কারের সেমনি ব্যবস্থা নেই, কখনো হয় কখনো হয় না, খুব রেয়ার হয়। জলের সমস্যা খুব কম আমরা জল পাচ্ছি, ঠিক আছে। এইসব নানান একটা পাড়ার মধ্যে এসব সমস্যাগুলো হয়। তো উনি আশ্বাস দিয়েছেন খুব শীঘ্রই উনি একটা করবেন, দেখা যাক। অভিনন্দন রায়। हम लोग सर के पास आए थे, हम लोग अपना दिए हैं कागज़ लिखा हुआ एप्लीकेशन,
वो बोले हैं कि देखिए अभी तो आचार संहिता लागू हो गया है, इसलिए हम चाह के भी आपका काम नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन आपको आश्वासन देते हैं कि इलेक्शन के बाद में पहला काम आपका ही होगा और सर्वे के लिए हम यही सप्ताह में आदमी भेज दे रहे हैं। ठीक है, वो सब कुछ देख लेगा। ठीक है, देख के आपको रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर मेरा काम नहीं हुआ, सर्वे वाला आदमी कोई नहीं गया, तो आप आके हमसे वेट कर सकते हैं। साफ सफाई के लिए साफ़ सफाई के लिए बोले हैं कि हम आदमी भेज रहे हैं। पानी के लिए भी हम लोग बोले हैं, पानी के लिए बोले हैं कि जो भी आप लोग का पानी कम गिर रहा है उसके लिए हम देख रहे हैं क्या किया जाए। ठीक है, साफ़ सफाई के लिए बोले हम आदमी भेज देंगे। ठीक है, रोड लाइट या जो भी वगैरह है उसके लिए हम आदमी भेज देंगे, वो सर्वे करके सब हम लोग को रिपोर्ट दे देगा। आप लोग खुद देख लीजिएगा, लेकिन मेरा जो आदमी जाएगा आप लोग उसको रोकिएगा मत। ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा। हम बोले हाँ सर हम लोग छोड़ देंगे, उसको हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, आप खाली हम लोग का काम करवा दीजिए। ठीक है, ये घटना है वार्ड नंबर 57 वैशाली पार्क बिहेंड। ठीक है, वहाँ की घटना है। ठीक है, हम लोग सर को सब बताएं, लिखित में दिए, रिसिप्ट भी हम लोग को दे दी है। ठीक है, मेरा नाम राजेश वाल्मीकि है, मैं वैशाली पार्क बिहेंड में रहता हूँ। बानपुर के रहमत नगर जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से कल रात इफ्तार का आयोजन किया गया। कमेटी के सचिव खालिद खान के नेतृत्व में आयोजित इस इफ्तार में जामा मस्जिद कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। इनके अलावा टीएमसी नेता शाहिद परवेज़ भी यहाँ उपस्थित थे। हालांकि खालिद खान ने बताया कि वो यहाँ पर टीएमसी नेता की हैसियत से नहीं बल्कि उनके दोस्त की हैसियत से उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि ये इफ्तार बेहद सीमित लोगों के लिए किया गया था, जिसमें जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। वहीं शाहिद परवेज़ ने कहा कि इफ्तार का असली रूप यही होना चाहिए जो इस जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से आयोजित इफ्तार में दिखा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आजकल इफ्तार के नाम पर सियासत भी हो रही है, जो कि सही नहीं है। कामयाब अफ्तार पार्टी के पूरी कमेटी के पूरे कारकुन को मुबारकबाद। अब दो ही दिन के बाद हम लोग ईद उल फित्र में चले जाएंगे, तो ईद के नमाज के बारे में हमें हमारे नाज़िम को बता दी कि यहाँ पे नमाज कब किस वक्त ईदगाह में 7:15 बजे और 8 बजे आना मस्जिद में। अगर बारिश हो गई तो, और बारिश की सूरत में हम लोगों ने तय किया बारिश अगर हो गई यहाँ तो 8:30 बजे दूसरी जमात मस्जिद में रहमत नगर, पहली जमात ईदगाह रहमत नगर ईदगाह में 7:15 बजे, दूसरी जमात मस्जिद में 8 बजे। अगर बारिश हो गई, बारिश तो दूसरी जमात यहाँ 8:30 बजे अदा की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये हम लोगों ने फैसला किया है, हमारे सरपंच साहब का भी राय है, हम लोगों ने जितना अराकीन मस्जिद है सभी के राय से आवाम से मिल करके मशवरा करके काम करेंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि 8 बजे और 8:30 बजे अगर बारिश हो गई तो आप लोग को मालूम ही है, हर साल की तरह इन साल रहमत नगर अंजुमन अतलाइया की जानिब से हम लोग अफ्तार पार्टी दिए। पहले ये पार्टी जनाजगाह में हुआ करता था, लेकिन अभी इस मरतबा हम लोग ने सिर्फ अराकीन मस्जिद की तरफ से हम लोग ने यहाँ में महदूद लोगों को, मतलब खास लोगों को, मेंबर जो है इत्काफ में जो बैठे हुए उन लोगों को लेकर के हम लोग एक छोटी सी पार्टी मस्जिद में किए, ताकि आपस में एक मोहब्बत बना रहे और राब्ता में रहे। इस लिहाज से हम लोगों ने यहाँ अफ्तार पार्टी किया। इंशाअल्लाह आइंदा जब फिर मौका मिलेगा तो बड़ी पार्टी जब हम लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह बाहर में करेंगे। अभी चूंकि मेंबरान हजरात थे एतकाफ में जितने लोग बैठे हुए इनकी तरफ से थे तो हम लोगों ने किया। फिर हमारे सरपंच इकबाल साहब ने की भी ख्वाहिश थी कि एक ठो कम से कम अफ्तार पार्टी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ किया। और हमारे आसनसोल से एक फर्द आने वाले शाहिद परवेज़ खान जो आसनसोल से हमारे दोस्त हैं, टीएमसी करते हैं, लेकिन हमने इनको पॉलिटिकल लिहाज से नहीं बोला, हमारे दोस्त थे इस लिहाज से इनको पार्टी में मदद किया। और जब भी हम बुलाया है अल्लाह करम से हमेशा आए, हर मामले में मेरे साथ रहे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने यहाँ पे तशरीफ लाया। रहमत नगर जामा मस्जिद कमेटी का अराकीन की तरफ से आज अफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया था, जिसमें हमारे दोस्त खालिद साहब जो खालिद खान के नाम से फेमस है, जो यहाँ का सेक्रेटरी है, उनके तमाम अराकीन मस्जिद तमाम लोगों ने जो हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद के अंदर में किया, ये बड़ा अच्छा लगा हमें। और उनकी दावत में लब्बैक करते हुए हम यहाँ पर आए। साथ में हमारे इकबाल भाई भी हैं जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और कभी कभी हम इनसे सीखते भी और कभी कभी इनको सिखाते भी। तो सबसे बड़ी पैगाम है कि जो आज जो अफ्तार पार्टी यहाँ रहमत नगर जामा मस्जिद में जो हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि अफ्तार पार्टी का सही एहतमाम यही होना चाहिए। अफ्तार पार्टी में सियासत का कोई रू नहीं होना चाहिए। हर तरफ सियासत का खेल हो रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है? आखिर क्यों अफ्तार पार्टी को इतना अहमियत दिया जाता है? इससे आज कोई हमको अहमियत नहीं जाता है। हमारे कौम के अंदर में बेदारी होना बहुत जरूरी है, और अब तक हम लोग बेदार नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह रमज़ान के मौके पर हम चांद रात का दिन जब ईद का चांद होता है
तो काफी रात भर हम लोग खुशियां मनाते हैं, जबकि असल रियल तो ईद के दिन होता है और उस दिन हम सोए रहते हैं। ठीक इसी तरह जब इलेक्शन आता है तो हम लोग बेदार हो जाते हैं और उसके बाद हमको ना कोई पूछता है ना हम उससे अपने सवाल करते हैं। ये क्या हालात है, कौम को अगर सुधरेगा नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। वैसे अल्लाह हमारे साथ है और हम लोग को इस महीने में जिस तरीके से अपने आप में जो अल्लाह के सामने पेश किया है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को गुनाहों को माफ करे और एक मजबूती के साथ इस मुल्क के सरबराही के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।